بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ظالم کی رسی جتنی بھی دراز ہو، ایک نہ ایک دن کھینچ لی جاتی ہے اور اسے اپنے ظلموں کا حساب دینا ہی پڑتا ہے۔ میرا باپ چودھری اقبال بھی ایک ایسا ہی ظالم شخص تھا جس نے اپنی طاقت اور دولت کے غرور میں اپنے پرائے ہر ایک کو حقیر سمجھا اور اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو طاقت کے ذریعے دبا دیا۔ مگر ایک وقت ایسا آیا جب میرے باپ کو اپنے مظالم کی سزا دنیا میں ہی مل گئی۔ آئیں میں آپ کو اپنی کہانی اپنی زبانی سناتا ہوں۔ میرا نام چودھری کمال ہے اور میں سرگودا کا رہنے والا ہوں۔ میں نے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی جہاں دولت اور طاقت کا راج تھا۔ میں اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا، جبکہ میری 2 بہنیں بھی تھیں۔ میرا باپ گاؤں کا چودھری تھا جو جدی پشتی زمیندار تھا۔ پورے علاقے میں سب سے زیادہ کنوؤں کے باغ ہمارے تھے۔ ہر سال زمینوں سے آنے والی قسم قسم کی فصلوں سے ہمارے گودام بھرے رہتے۔ پورے گاؤں میں سب سے بڑی حویلی صرف ہماری تھی، جہاں ہمہ وقت نوکروں کی فوج موجود رہتی۔ میرے باپ چودھری اقبال کے ایک اشارے پر سارے کام ہو جاتے۔ کسی نوکر یا کمی کی مجال نہیں تھی کہ وہ سر اٹھا کر میرے باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا۔ میرے باپ کا روب ہی ایسا تھا، اونچا لمبا قد، بھرا بھرا صحت مند جسم، سر پر اونچا شملہ اور پیروں میں خصا پہنے میرے باپ کی شخصیت سب سے الگ نظر آتی۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت سخت اور شفاق انسان تھا۔ ذرا سی غلطی یا کوتاہی پر نوکروں کو پیٹ ڈالتا۔ اپنے سخت چمڑے سے بنے ہنٹر سے میں نے کئی بار اسے نوکروں کو مارتے دیکھا، جس کے بعد ان کے جسموں پر ہنٹر کے نشان ساری عمر نہ جاتے۔ اسی لیے گھر کے نوکر چاکر اسے غصے میں دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگتے، اور ان کے غصے سے صرف نوکر چاکر ہی نہیں بلکہ میری سگی ماں بھی کانپتی تھی۔ اس کی بھی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے کھڑی ہو کر کسی بات سے اختلاف کرے۔ اس نے بھی اپنے شوہر کے ہاتھوں کافی مار کھائی تھی، لیکن جب میں پیدا ہوا تو اس کی جان بخشی ہو گئی، کیونکہ میں 2 بہنوں کے بعد پیدا ہونے والا ان کا اکلوتا وارث تھا۔ اس لیے میری ماں اب اس کے عتاب سے بچی رہتی۔ مگر میری سوتیلی ماں شبنم عرف شبو اس کے عتاب سے نہ بچ سکی تھی۔ اگرچہ یہ میری پیدائش سے پہلے کا واقعہ تھا، مگر میں نے یہ واقعہ اپنی ماں اور بہنوں سے سنا تھا، کیونکہ اب حویلی میں شبو کا نام لینے پر بھی پابندی تھی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ میرا باپ اکثر شہر طوائفوں کے کوٹھوں پر جایا کرتا تھا۔ وہاں وہ کئی دن تک رہتا، طوائفوں کے رقص پر پیسے لٹاتا۔ ایسے ہی ایک کوٹھے پر اس کی آنکھ شبنم عرف شبو پر ٹھہر گئی تھی، جو ابھی صرف 18 سال کی الڑ لڑکی تھی۔ مگر جب میرے باپ نے اسے دیکھا تو اسے دیکھتا ہی رہا۔ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت کہ سارے بازار حسن میں اس کے حسن کے چرچے تھے۔ ہر کوئی اس کے حسن کا دیوانہ تھا اور اسی کی خاطر کوٹھے پر کھنچا چلا آتا۔ اب جب میرے باپ نے شبو کی ادائیں دیکھی تو اس پر دل ہار بیٹھا۔ میری ماں گاؤں کی ایک سیدھی سادی عورت تھی، وہ بھلا ایسی بازاری ادائیں کہاں جانتی تھی، اسی لیے تو میرا باپ شبو پر دل اٹھا بیٹھا تھا۔ اب میرے باپ نے دن رات جگن بائی کے کوٹھے پر بسر کرنے شروع کر دیے اور دونوں ہاتھوں سے دولت لٹانی شروع کر دی۔ جگن بائی تو خوشی سے دیوانی ہو گئی، کیونکہ اس کی تو سال بھر کی کمائی ایک رات میں ہی ہو گئی تھی۔ اس نے میرے باپ کو خصوصی توجہ دینی شروع کر دی تاکہ اس کا یہ گاہک مستقل پھنسا رہے اور وہ زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کر سکے۔ میرا باپ 2 دن گاؤں میں آتا، ضروری کام نپٹاتے ہی شہر روانہ ہو جاتا اور جاتے ہی جگن بائی کے کوٹھے کی چوکھٹ پکڑ لیتا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ جب میرے باپ کو پتہ چل گیا کہ اب جگن بائی سے پائی کا حساب چکتا کرنے کا وقت آ گیا ہے تو اس نے شبو سے شادی کا اظہار کر دیا۔ مگر جگن بائی نے کہا کہ اگر شبو اس کوٹھے سے رخصت ہو گئی تو میرا کیا ہوگا، کیونکہ میرے کوٹھے کی رونق تو ختم ہو جائے گی، بلکہ میرا کوٹھا تو اجڑ جائے گا۔ مگر میرے باپ نے اسے یقین دلایا کہ وہ بعد میں بھی اس کا خیال رکھے گا۔ اب جگن بائی بھی جانتی تھی کہ چودھری اقبال کو انکار کرنا کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے، اس لیے وہ زیادہ دیر اپنے انکار پر قائم نہ رہ سکی اور ہاں کر دی۔ جگن بائی کی ایک ہاں سے میرا باپ خوشی سے دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس نے واقعی جگن بائی کا منہ موتیوں سے بھر دیا تھا، اور پھر ایک دن وہ جگن بائی کے کوٹھے کی سب سے حسین اور کم عمر طوائف کو بیاہ کر اپنی حویلی لے آیا۔ میری ماں بیچاری کیا کر سکتی تھی،
वो वट्टे सट्टे में ब्याह कर उस घर में आई थी, मगर मेरे ननिहाल वाले कदरे कमज़ोर लोग थे, जबकि मेरे बाप की दौलत और ताकत बेपनाह थी। इसलिए मेरे नाना और मामू भी सब्र का घूंट भरकर रह गए, और मेरी माँ ने तो एक लफ्ज़ भी मुंह से ना निकाला और अपनी सोतन को सीने से लगाकर खुश आमदीद कहा, क्योंकि वो जानती थी कि एहतजाज का कोई फ़ायदा नहीं था। शब्बो की सूरत और जवानी मेरे बाप के दिलो दिमाग पर छा गई, और उससे शब्बो के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता था। शब्बो की घर में आमद पर मेरे बाप ने बहुत बड़ा जश्न रखा था। 7 दिन तक सारे गांव वालों को खाना खिलाया गया था और खुशी के शादियाने बजाए गए थे। गांव की औरतों ने शब्बो जैसी खूबसूरत और कम उम्र चौधरानी को देखकर हैरत से मुंह में उंगलियां दाब ली थीं, मगर वो नहीं जानते थे कि दौलत और ताकत सब कुछ करवा सकते हैं। मेरी माँ ने शब्बो के लिए खास कमरा खुद अपने हाथों से तैयार किया था, क्योंकि यही मेरे बाप का हुक्म था, और मेरे बाप के हुक्म से भला कौन इनकार कर सकता था। इसी तरह दिन गुजरते गए। मेरा बाप शब्बो की एक निगाह पर सब कुछ लुटाने को तैयार रहता था। वो अब मेरी माँ की तरफ कम ही आता था। सारा वक्त हवेली के पिछले हिस्से में मेरी सौतेली माँ शब्बो के साथ गुजारता, और कभी कभार भूले भटके मेरी माँ के कमरे में भी आ जाता। दिन गुजरते गए और शब्बो की खूबसूरती मजीद निखरती गई, क्योंकि अब उसकी कोठे से जान छूट चुकी थी और वो बड़े ठाठ से छोटी चौधरानी बनकर हवेली में रह रही थी। मगर किसी को भी असल हकीकत मालूम नहीं थी कि शब्बो के मन में क्या है, क्योंकि उसने अपना ये राज किसी को नहीं बताया था। मगर ऐसी बातें भला कहाँ छुपती हैं, इसलिए शब्बो के दिल का राज भी आखिरकार एक दिन खुल ही गया, जब हमारे वफादार मुलाजिम अक्कू ने रात के अंधेरे में छोटी चौधरानी के कमरे में किसी को दाखिल होते देखा। छोटी चौधरानी का कमरा हवेली की पिछली तरफ था, जहां घर के बाकी मुलाजमों को जाने की इजाजत नहीं थी। वहां सिर्फ शब्बो के खास मुलाजिम ही काम करते थे, और वो सिर्फ उसी के वफादार थे। अक्कू उसी रात मेरे बाप से मिलने वहां आया था, मगर दबे पांव वहीं से लौट गया, और उसके दिल में शक बैठ गया। इसके बाद उसने सारे मामले का निहायत राजदारी के साथ जायजा लिया और मामले की तह तक पहुंच गया। सारे मामले का खुरा शब्बो के कोठे तक पहुंचता था। अक्कू ने बड़ी चौधरानी यानी मेरी माँ के आगे सारा मामला रख दिया, और मामला कुछ यूं था कि शब्बो पहले दिन से ही कोठे पर हारमोनियम बजाने वाले नौजवान सरफराज से मोहब्बत करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। मगर उसकी नायिका जुग्गनबाई ने उसके जिस्म की कीमत वसूल करके उसे मेरे बाप के हवाले कर दिया था। मगर शब्बो का इश्क अभी भी जवान था, क्योंकि वो मेरे बाप की बीवी होकर भी सरफराज से छुपकर मिलती थी। जिस दिन मेरा बाप हवेली से बाहर होता, ठीक उसी दिन शब्बो अपने वफादार मुलाजिम के हाथ पैगाम भिजवाती और सरफराज रात की तारीकी में उससे मिलने चला आता। वो सारी रात उसके साथ गुजारता और फिर सुबह का सवेरा होने से पहले हवेली से निकल जाता, और ये मामला पहले दिन से चल रहा था। मेरी माँ ने अक्कू के मुंह से जब ये सारा मामला सुना तो वो डर के मारे चुप बैठी रह गई। फिर उसने अक्कू को इस मामले से दूर रहने का कहा, और ये भी कहा कि ये बात चौधरी को भी पता ना चले। अक्कू मेरी माँ का वफादार मुलाजिम था। इसने अपनी मालकन को अपनी वफादारी का यकीन दिलाया और खामोशी से तमाशा देखने लगा। मगर मेरे होशियार बाप से ये राज ज्यादा दिन छुपा ना रह सका, और जिस दिन उसे उस बात का पता चला, हवेली में एक तूफान आ गया। और फिर हवेली वालों ने वो मंजर भी देखा कि मेरे बाप ने अपनी लाडली बीवी शब्बो को बालों से पकड़कर हवेली के सहन में ला फेंका, और फिर अपना चमड़े का हंटर मंगवाकर उसे मारना शुरू कर दिया, और उसे इतना मारा कि शब्बो का जिस्म लहूलुहान कर दिया। जब मेरा बाप मारते मारते थक गया तो हाँफते हुए जमीन पर गिर गया। शब्बो नीम मुर्दा होकर सहन के फर्श पर पड़ी रही। हवेली के खास नौकरों ने इस बात की भी तस्दीक की थी कि सरफराज भी पकड़ा गया था, और उसे शब्बो से भी ज्यादा सख्त सजा मिली थी, क्योंकि मेरे बाप ने उसे अपने भूखे कुत्तों के आगे डाल दिया था, जिन्होंने मिनटों में उसका सफाया कर दिया था। सरफराज तो जल्द ही अपने अंजाम को पहुंच गया था, मगर शब्बो की सजा काफी अरसे तक चलती रही, और मेरे बाप ने शब्बो को उसकी बेवफाई की ऐसी भयानक सजा दी कि लोग सुनकर कानों को हाथ लगाते थे, क्योंकि शब्बो जब तक जिंदा रही तब तक वो कुत्तों वाले कमरे में जंजीरों के साथ बंधी रही। और यही नहीं, बल्कि मेरे बाप ने हुक्म दिया था कि उसे खाना भी कुत्तों वाले बर्तन में डाला जाए, इसीलिए नौकर उसे कुत्तों वाले बर्तन में खाना देते थे।
शब्बो पहले तो बहुत चीखती चिल्लाती थी, मगर बाद में बिल्कुल चुप हो गई और हर वक्त आसमान की तरफ देखती रहती। वो ना कुछ खाती और ना ही पीती और इसी तरह एक दिन भूखी मर गई। और यूं शब्बो की मौत के साथ ही ये कहानी भी हवेली में दफन हो गई। और अब कोई भूल कर भी शब्बो का नाम नहीं लेता था, क्योंकि ये मेरे बाप का हुक्म था। शब्बो के मरने के बाद मेरा बाप मेरी माँ की तरफ लौट आया और फिर 3 साल बाद मैं इस दुनिया में आ गया। मेरे इस दुनिया में आने के बाद मेरे बाप के गुरूर में मजीद इजाफा हो गया था, क्योंकि उसकी नस्ल बढ़ाने वाला और उसकी विरासत का इकलौता वारिस आ चुका था। और जब तक मैं जवान हुआ मेरे बाप के जुल्म और सितम देखता रहा। वो जरा जरा सी गलती पर अब भी नौकरों को पीटता। गांव में किसी की जुर्रत न थी कि कोई मेरे बाप की इजाजत के बगैर जमीनों पर कदम भी रखता। वो अपने दुश्मनों के साथ भी इसी सफाकी से पेश आता था, यानी उसके दिल में रहम नाम का कोई जज्बा नहीं था। और हकीकत यही थी कि मैं और मेरी बहनें भी बाप से बहुत डरते थे, इसीलिए हम सब उससे हमेशा एक फासले पर ही रहे। जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो मैंने अपने बाप के रास्ते पर चलने से इनकार करके अपने लिए खुद रास्ते बनाए, क्योंकि मैं दौलत और ताकत के बलबूते पर गरीब लोगों से जानवरों जैसा सलूक नहीं कर सकता था, और यही बात मेरे बाप को पसंद नहीं थी। खैर, एक वक्त ऐसा भी आया जब मेरे बाप का सारा गुरूर टूट गया। उसे अचानक ही एक रोज फालिज का अटैक हुआ और उसका निचला धड़ मफलूज हो गया, और वो महंगे तरीन इलाज के बावजूद भी दोबारा अपने कदमों पर खड़ा ना हो सका। वो सारा दिन अपने बिस्तर पर बेहिस्सो हरकत पड़ा रहता। मेरी माँ उसका ख्याल रखती, मगर उसकी हालत में बेहतरी आने के बजाय तबीयत मजीद बिगड़ती गई। अब उसके दोनों बाजू भी काम करना छोड़ गए और वो महज सांस लेता पुत बनकर रह गया, जो अपनी मर्जी से हरकत भी नहीं कर सकता था। जब लोग मेरे बाप की ये हालत देखते तो फौरन तौबा के लिए कानों को पकड़ लेते, क्योंकि उसने जो जुल्म शब्बो और सरफराज पर किए थे उसके मुकाबले में ये सजा बहुत कम थी। मेरे बाप को भी अपने तमाम जुल्मों का एहसास हो चुका था, मगर अब शायद अल्लाह ने उसकी रस्सी खींच ली थी, और जब अल्लाह जालिम की रस्सी खींचता है तो फिर इंसान मुंह के बल जमीन पर गिरता है। मेरा बाप भी न जाने कितने सालों से इसी हालत में बिस्तर पर पड़ा है। वो हर वक्त रोता और अपनी मौत की दुआएं मांगता है, मगर शायद मौत ने भी उसे कबूल करने से इनकार कर दिया है। खुदारा अपनी दौलत और ताकत के नशे में किसी इंसान के साथ कुछ बुरा मत करे, वरना अंजाम मेरे बाप चौधरी इकबाल जैसा होगा।